Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel CSS and PMS Essentials. And you are watching the lecture series of geography on this channel. And this is the first lecture of geographic series. And this lecture will cover all the basic terminologies of the geography. And it will cover the basic geographical features of the world. So let's start with this lecture. बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी दैट हैज़ बिन रिमेन्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग इन द जर्नी ऑफ माई CSS एंड PMS प्रेपरेशन. वो बात ये है कि आई स्टिल रिमेंबर the day first when I went to academy and I saw the map on the wall and I just got panic कि मैं कैसे करूँगी ये. मतलब उस टाइम इस तरह था कि कुछ भी माइंड में नहीं था कि क्या होगा, कैसे याद करूँगी. बस आई वॉज गेटिंग हेजिटेशन. बट राइट नाउ आई एम ग्लैड कि मुझे वो चीज़ें अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं. लेकिन मैं इस बात का क्रेडिट एकेडमी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल भी नहीं दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें एकेडमी से ऑफ रहने के बाद ही मतलब खुद ही लर्न की हैं ये चीज़ें. जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, दैन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कांट लर्न इवन इन अकेडमीज़. चाहे वो 2 साल का ड्यूरेशन हो, 1 साल का हो, इधर 4 months or 6 months, whatever the duration you learn from academy, you can never learn the things which you learn by self studying. So I would also like to indicate the importance of geography if you are preparing for any competitive exam, either it is CSS, PMS or one paper exam or any kind of exam. If you are preparing for any kind of competitive exam, you must know about geography and it should be on your fingertips along with map in your mind. ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे जाके, क्योंकि ये चीज़ें वो है, मैप और जियोग्राफी ये चीज़ें वो हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प आउट करती हैं. Either you are studying current affairs, either you are studying Pakistan affairs, US history, if you are studying any historical subject or even in essay. क्योंकि जब आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी, आपके माइंड में वो मैप होगा, you will be clear at all your points and you will be at ease while writing any kind of topic. क्योंकि आपके माइंड में वो क्लैरिटी जब आ जाती है ना, बेसिक कंसेप्ट बन जाता है, आपकी बेस बन जाती है, तो आगे आपके लिए चीज़ें करना मुश्किल नहीं होता. And this subject of geography, it was not my optional subject in CSS but yes in PMS. और PMS में करने के बाद मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि yes, I should also go for geography as optional subject in my CSS. Anyways, let's start our lecture of today, that is the around the world, and it covers a basic concept of geography. So first of all, we must know what are the kinds of oceans that we have on our physical map of the world. There are 5 oceans. ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताते हैं कि दुनिया में 7 समंदर हैं. आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, इंडियन सॉन्ग, आपके माइंड में भी आया होगा, क्लिक किया होगा. आई होप सो. 7 समंदर वो पार में तेरे पीछे आ गई, वो वाला सॉन्ग. बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग. उनको तो मेरे ख्याल में जियोग्राफी का ही नहीं पता होगा. सो रिमूव दैट कॉन्सेप्ट. देयर आर 7 oceans. देयर आर 5 oceans, right? Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean, Pacific Ocean and Indian Ocean, right? And these are located on this map. You can see these are mentioned on the screen. So these are some terminologies that are very common while studying geography, but they are confusing because there is little bit difference between these terms, concepts. First one we have creek, second one gulf, third one bay, and the fourth one is bight. So the creek is a smallest water body, gulf is greater than creek, bay is greater than gulf, and bight is greater than bay.
इसको आप ऐसे सीरीज़ में याद कर लें. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज विद द मैप एंड विद ऑल एक्सप्लेनेशन. अभी बस आप इतना ही याद रख लें कि क्रीक जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट inlet of water, gulf that is larger than creek, bay larger than gulf, and bight that is larger than bay, right? Next we have gulf and bight. Here you can see on the map it is located. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे here is located the map of Australia. Right above we have Gulf of Carpentaria, and right the below of this we have Great Australian Bight. ठीक, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है जो गल्फ है दैट इज़ स्मॉलर एंड बाइट इज़ लार्जर देन गल्फ. एज वी बाइट समथिंग लाइक समथिंग एडिबल, आप उसको बाइट लेते हो, ठीक है. अगर आप छोटा बाइट लेते हो दैट इज़ गल्फ. अगर आप बड़ा बाइट लेते हो दैन इट्स कॉल्ड बाइट. I hope you have understood these concepts, but I will explain later in detail about this. Next we have the terminology that is pronounced as isthmus. It is a narrow strip of land between two major land masses as Panama Isthmus. Here you can see on the screen the map that is located. Right upper part is that of North America, and the last below one is Central America, and in between of these parts we have Panama, as you are aware of this, I think so. So this is a narrow strip of land, like we can say a bridge between two land masses. Here we can say it's also a kind of Panama bridge or Panama land mass. That's a very narrow strip of land. Next here you can see this Panama landmass that's called isthmus in geographical terms. Next we have peninsula. That's very important to know about it. It's a landmass having water on its three sides. For example, Iberian Peninsula, Arabian Peninsula. अब पेनिनसुला होता है क्या है? इसमें ये होता है कि इसके तीन साइड पे ज़मीन होती है और एक साइड पे पानी होता है. ऑन थ्री साइड लैंड मैस एंड ऑन वन साइड वाटर बॉडी. ठीक है, इसको कहते हैं हम पेनिनसुला. यहाँ पे मैप पे भी मेंशन है, आप इजीली देख सकते हो. जैसे यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला और बाकी जो है आप लोकेटेड हैं, आप देख सकते हैं इसको. नेक्स्ट आइलैंड जो पीपल आर अवेयर ऑफ इट, इट्स वेरी कॉमन टर्म. अ लैंड मैस हैविंग वाटर ऑल अराउंड. जैसे एक ओशन है, ओशन के बिल्कुल सेंटर में, या ओशन के मीन्स ऑल अराउंड देयर इज़ वाटर एंड इन सेंटर वी हैव अ लैंड मैस. तो किसी भी ओशन में या कोई भी वाटर बॉडी है उसके सेंटर में आपके पास एक कोई छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है तो आप उसको आइलैंड कहते हो. नेक्स्ट वी हैव प्लेट्यूज, हिल्स एंड माउंटेन्स. इनमें भी बहुत माइनर से डिफरेंस है. जैसे हमने उसमें देखा ग्रीक, गल्फ, बाइट, उसमें देखा, यहाँ पे भी ऐसे ही है. प्लेट्यू, हिल्स एंड माउंटेन्स. प्लेट्यू जो है ये छोटे होते हैं, हिल्स आर ग्रेटर दैन प्लेट्यू एंड माउंटेन्स ग्रेटर दैन हिल्स. प्लेट्यू होता है जैसे हमारे अपने पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, दैट इज़ अ प्लेट्यू. प्लेट्यू होता है कि आप एक जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ एज माउंटेन, आप उसको कट करके वहाँ पे कम्युनिटीज़ जो है वो वहाँ पे बसने लग जाती हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं लोग. वहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी जो है वो लार्जर देन कम्युनिटी भी हो सकता है, मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे वो रहने लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेट्यू. जैसे अगर हम इस्लामाबाद से आगे मरी की तरफ जाएं तो ये है कि स्टार्ट से ही नहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते, वहाँ से स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा मतलब वर्टिकल टाइप जो है उस तरह की जो है लैंड वो इस तरह स्टार्ट हो जाती है, तो वो प्लेट्यू उसको हम बोलते हैं. मीन्स कटा हुआ पहाड़, आप इजी लैंग्वेज में इस तरह बोल सकते हो. देन वी हैव हिल्स. दीज आर लिटिल बिट लार्जर दैन प्लेट्यूज. मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा पीक नहीं होती उनकी. जैसे इसकी जो है हाइट, प्लेट्यूज की हमारे पास हाइट मिनिमम और मैक्सिमम 500 मीटर होती है और हिल्स की हमारे पास 600 मीटर होती है और इनकी पीक्स शार्प नहीं होती हैं. बट ऑन दी अदर हैंड जो माउंटेन्स है
These are having peaks and height. इनकी height होती है more than 600 meter and they have very high and sharp peak. I hope you are clear with three these terminologies. Next we have difference between seas and oceans. अब इनका डिफरेंस भी बहुत स्मॉल सा है, बहुत माइनर सा है. अब जैसे हम कहते हैं कि एक दरिया है, रिवर है, उसके अंदर बहुत सारी जो है लेक्स, नहरें, कैनाल्स वगैरह उसके अंदर जाके गिरती हैं तो दरिया बन जाता है. इसी तरह जो ओशन है उसके अंदर बहुत सारे जो ओशन में बहुत स्मॉलर सीज जो है वो उसके अंदर आके गिरते हैं एंड ओशंस कंबाइंस एंड फॉर्म एन ओशन. So here you can see sea is a constitute part of the ocean and is smaller than ocean. An ocean have many seas in it. Just like I have told you that canals are fallen in the river, and similarly seas and oceans. Here you can see on the map everything is located, and I hope these things are very clear to you to mark. Next we have strait. Strait is very important terminology if you are studying geography, and this is the term that is used everywhere. Current affairs, Pakistan affairs, or every international relations you are studying in political manners or physical manners, this term is very important. So इसकी significance आप देख सकते हैं. जैसे हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एंड मैनी अदर्स. तो ये स्ट्रेट होता क्या है एक्चुअली? इट इज़ अ पैसेज ऑफ वाटर, नैरो पैसेज ऑफ वाटर बिटवीन टू लैंड मैसेज सच एज स्ट्रेट बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को. यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो, राइट अबव वी हैव स्पेन एंड एट द बॉटम वी हैव मोरक्को, एंड इन बिटवीन दीज टू लैंड बॉडीज वी हैव अ स्मॉल पैसेज ऑफ नैरो वाटर बॉडी. स्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है? जो दो लैंड मैसेज को सेपरेट करता है और वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, ये वाटर बॉडीज़ हैं. दीज आर कनेक्टिंग थ्रू द नैरो पैसेज ऑफ लैंड वाटर एंड right above and the below at the bottom we have Spain and Morocco. These are the land bodies, land masses. These are getting separated through this Strait of Gibraltar, right? Next we have desert. ये तो बहुत कॉमन सी टर्म है, इसका आपको आई थिंक नॉट आई थिंक आई बिलीव आपको पता होगा. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इट्स हैविंग लेस precipitation and no rainfall, less vegetation, no greenery, less inhabitation, no people. ऑब्वियसली वहाँ पे डेजर्ट में इंसान की सर्वाइवल के लिए चीज़ें वो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. और वहाँ पे सारी रेत ही होती है, तो इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकती और कोई ग्रीनरी नहीं होगी. और रेनफॉल भी बहुत कम होती है, बिलो 550 मिलीलीटर. और इसमें हमारे पास है इसकी रीजंस क्या है? एरिया, दीज आर फॉर अवे फ्रॉम द सी एंड एक्सट्रीम कोल्ड और लो टेम्परेचर. समंदर से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है हमारे पास इरिगेटेड लैंड नहीं होता. वहाँ पे ग्रीनरी और वहाँ पे सर्वाइवल दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. Then we have 5 oceans here. You can see these are located on the map. And next, this is Mariana Trench, and this is between the North Pacific Ocean and the South Pacific Ocean. On the right side of the Russia and the in the east side of Russia, and on the western side of America, North America. ये भी आगे मैं आपको इसकी डिटेल में चीज़ें बता दूँगी थ्रू इंडिकेटिंग ऑन द मैप इन प्रॉपर मैनर. Then we have Indian Ocean. Indian Ocean is right below the India, क्योंकि उसकी इंडिया के जो है कोस्टल लाइन को वो टच करता है. दैट्स वाई इट्स इंडियन ओशन. और इंडियन ओशन के अंदर ही हमारे पास अरेबियन सी आता है, जो हमारे पाकिस्तान की जो है बलूचिस्तान और कराची की जो हमारी कोस्टल लाइन है पाकिस्तान की, तो दैट कोस्टल लाइन इज़ टच्ड बाय द अरेबियन सी. बाकी इस पर
जो है इसकी लोकेशन आपके सामने है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टिनेंट्स। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स in the world. We have 7 continents. The first one is Asia, second one Europe, third one Africa, then North America, South America, Antarctica and Australia. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर जहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है वहाँ पे न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी का एक छोटा सा लैंड मैस है, उसको और उसके ऑस्ट्रेलिया को और उसके नियर बाय जो छोटे छोटे लैंड मैसेस हैं, अगर हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो हम उसको ओशनिया कहते हैं, ठीक है। और अगर एशिया और यूरोप को हम कंबाइंडली बोलेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड यूरेशिया। Then we have our first continent, that is Asia. Here are mentioned some the characteristics of the Asia continent. That planet's largest continent and it has 48 countries. 48 countries. इसको आपने याद रखना है, ये आपसे मोस्टली MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। There are 48 countries in Asia and it covers 30% of the world land mass. Asia hosts world's tallest mountains, as we know Mount Everest in Nepal, and world's lowest point that is found in Dead Sea, जो हमारे पास है इसराइल और जॉर्डन में, हमारे उनके दरमियान में आता है। और ये है इसकी जो है हाइट है दैट इज़ बिलो द सी लेवल, दैट्स वाई इट्स द लोवेस्ट पॉइंट। क्योंकि इसकी जो गहराई है ना डेड सी की, इसकी गहराई समंदर की सतह से भी बहुत ज़्यादा नीचे है, इस वजह से इसको कहा जाता है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता दूँ, जो है हमारा वर्ल्ड्स लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं डेड सी, डेड सी के अंदर है। और जो हमारा डीपेस्ट पॉइंट है वो हमारा है मरियाना ट्रेंच, जो कि हमारे पास है पैसिफिक ओशन में आता है। और एशिया की जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन वो होती है जो आपकी कंट्री की जो बॉर्डर लाइन होती है, जो पानी के साथ टच कर रही होती है, किसी ओशन के साथ टच कर रही होती है, वो कोस्टल लाइन होती है। और एशिया की कोस्टल लाइन जो है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। एंड इन एशिया द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक वो जो है दैट इज़ बेकॉल। ये लास्ट पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली MCQs में 1 पेपर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हेयर इज़ एशिया मैप, यू कैन सी द कंट्रीज़, 48 countries that are located on it. You can pause the video and note down this if you want to see. Next we have South Asia. ये हमारा पाकिस्तान जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द यूनिवर्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पाकिस्तान के एशिया में है, साउथ एशिया में है, तो हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि उसके साथ जो बॉर्डर है वो किस चीज़ का टच होता है और कौन से कंट्रीज़ जो हैं अदर देन पाकिस्तान वो साउथ एशिया में आते हैं। सो देयर आर 8 countries दैट आर लोकेटेड इन साउथ एशिया। नंबर 1 पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड भूटान। दीज आर द 8 countries दैट आर साउथ एशियन कंट्रीज़। और आप इस यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट कर लें कि दीज आर दी मेंबर्स ऑफ सार्क, SAARC, सार्क साउथ एशियन। तो ये मेंबर्स जो हैं ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्क के जो हैं 8 मेंबर्स एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 December 1985 by these all 8 members and is the largest organization with respect to population. And जो लास्ट मेंबर था इसका दैट वाज अफ़गानिस्तान, इसने 2007 में इसको ज्वाइन किया था। देन वी हैव लैंड बॉडी बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यहाँ पे चाइना भूटान के राइट साइड पे एक लैंड बॉडी है जिसको चाइना कहता है कि मेरा पार्ट है, वो मेरा हिस्सा है, और इंडिया कहता है कि वो हमारा है।
इसी तरह से मीन्स यू कैन सी एवरीवेयर दिस इज़ अ लैंड डिस्प्यूट मीन्स जियो पोलिटिकल इशूज़ इन साउथ एशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट वी हैव साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़. पहले हमने साउथ एशियन पढ़ा है, अब हमारे पास है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़. ये कंट्रीज़ हमारे पास आते हैं ऑस्ट्रेलिया से ऊपर और चाइना और जापान, वो सारे उसमें कंट्रीज़ आ जाते हैं उसके ईस्टर्न साइड वाले. उसके दरमियान में जो है उसमें हमारे पास म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रूनेई, जेरूसलम, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये सारे आते हैं. ये आप मैप पे देख सकते हो कहाँ कहाँ पे ये मेंशन्ड है. देन वी हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़. इसको हम साउथ वेस्ट एशिया भी बोलते हैं और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी बोलते हैं. अरे वैसे तो ये पार्ट है एशिया का ही, बट इसको हम उनकी जो है ऑयल और एनर्जी की उसकी वजह से हम इसको कहते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़. ये आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे फिज़िकल मैप दिया हुआ है एशिया का, जो आप देख सकते हो. वी हैव फॉर ईस्ट कंट्रीज़. ये आई थिंक अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. सॉरी, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ नहीं है. आई फॉरगॉट. लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हमारे पास हैं कार्ड्स दैट आर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. दीज आर कॉक्सस कंट्रीज़ एंड हैविंग कॉक्सस माउंटेन्स. टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, इनकी बाउंड्री जो है ये है. टर्की की बाउंड्री ब्लैक सी से टच होती है और यूराल माउंटेन्स जो हैं वो उधर से रशिया से आके इसमें गिरते हैं. और हमारे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है इनके राइट साइड पे जो वाटर बॉडी है दैट इज़ कैस्पियन सी. ये आगे मैं आपको मैप पे मेंशन कर दूँगी कहाँ पे आते हैं ये. और यहाँ पे कंट्री सॉरी कार्ड्स जो हैं दीज आर ऑल्सो 5 कंट्रीज़ एंड इनके एंड पे TAN आता है, जैसे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे हमारे पास कार्ड कंट्रीज़ हैं. देन वी हैव, ये हमारे पास एशिया का मैप है, इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो. Then we have Europe. This is the second continent. Europe, it's the planet's 6th largest continent and it includes 44 countries. एशिया में हमारे पास कितने थे? 48 countries और इसमें हमारे पास हैं 44 countries. European continent that is bordered by numerous bodies of water and is separated from Asia by Russia's Ural Mountains and by the Caspian and Black Seas, and it is separated from Africa by the Mediterranean Sea. Right? अब हमारे पास वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें जो हमारे दो कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया और यूरोप, इनको सेपरेट करती हैं. एक तो हमारे पास यूराल माउंटेन्स हैं जो कि हमारे पास रशिया में है, और रशिया का थोड़ा सा पार्ट जो है वेस्टर्न जो रशिया है वो हमारे पास यूरोप में काउंट होता है. तो ये यूरोप जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें यूराल माउंटेन्स जो हैं वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, और जो यूराल माउंटेन्स हैं वो रशिया से होते हुए जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ऊपर से टर्की, उसके साथ जो ब्लैक सी टच करता है वो उसमें आके गिरता है. वहाँ से उसका मतलब टच करता है उसकी जो माउंटेन रेंज है, एंड दैट इज़ द वेरी लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन रशिया एंड यू कैन ऑल्सो से अफ्रीका, सॉरी एशिया. और उसके अलावा हमारे पास कैस्पियन सी भी है जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है. और ये अफ्रीका से एशिया से सेपरेटेड है यूराल माउंटेन्स और कैस्पियन सी के थ्रू, और यूरोप अफ्रीका से किस तरह सेपरेट है, दैट इज़ थ्रू मेडिटेरेनियन सी. ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें करंट अफेयर्स और इस तरह की बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे. कि जब आपको बेसिक पता होती है ना कि ये स्टेट कौन सी है, ये किस में आती है, तो आप उसका इशू जो है, चाहे वो टेरिटोरियल इशू हो या कोई पॉलिटिकल इशू हो, आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ये उसका मैप है स्कैंडिनेवियन और बाल्टिक स्टेट्स का. देन वी हैव अल्पाइन कंट्रीज़ जो कि एल्प्स माउंटेन्स के नियर बाय हमारे पास मौजूद हैं. These are Balkan states.
ये बाल्कान स्टेट्स हमारे पास यूरोप में आती हैं, ईस्टर्न एंड सदर्न यूरोप में। इसमें ये सारे कंट्रीज़ आते हैं जो मेंशन हैं, जो ग्रे कलर से किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। इसको बाल्कान पेनिनसुला भी कहते हैं। जो पेनिनसुला बताया है क्या होता है, उसकी 3 साइड पे ज़मीन होती है और एक साइड पे पानी होता है। तो इसको आप मैप पे भी इजीली देख सकते हो। देन वी हैव इटालियन पेनिनसुला। इस पे भी यही है, हमारे पास 3 साइड पे ज़मीन है और एक साइड पे वाटर है। इस पे जो मेंशन है टावर है, उसके बाद उसकी फूड, उसका फैशन और मीन्स एवरीथिंग इज़ लोकेटेड ऑन इट दैट आर रेलिवेंट टू इटली। मीन्स इटली की जो चीज़ें फेमस हैं उससे ही कंट्री की पहचान है। और उसमें हमारे पास फैशन आता है, उसका टावर जो हमारे पास है, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा हमारे पास इटली में है। ये एमसीक्यूज़ में हमेशा पूछा जाता है, मोस्टली आ जाता है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप के ईस्ट साइड पे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये आप मैप पे लोकेटेड हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेनिलक्स और लो कंट्रीज़। इसमें हमारे पास आते हैं बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, पोलर ड्रेनेज। ये पोलर ड्रेनेज क्या होता है, द एरिया इज़ रिक्लेम्ड बाय सी बाय मेकिंग ग्राइनेज। अब ये पोलर ड्रेनेज वो होता है जैसे हमारे पास एक कोस्टल लाइन है, ठीक है। कोस्टल लाइन, उसके एक साइड पे तो हमारा जो है वो कंट्री की जो है वो लैंड बॉडी होगी, लैंड मैस होगा, और दूसरी साइड पे वाटर बॉडी होगी। अब जो कोस्टल लाइन है वहाँ पे कुछ पत्थर से पड़े होते हैं, ठीक। कुछ किसी जगह पे तो कुछ वो छोटे छोटे जो हैं वो छोटे नहीं बल्कि बड़े स्टोन्स पड़े होते हैं, या कुछ और इस तरह का मटेरियल कुछ भी पड़ा होता है, उसका उससे ना एक पैसेज सा बन जाता है उसके। और ज़मीन सॉरी और पानी के जो समंदर का पानी होता है उसके दरमियान का जो एरिया होता है ना, दैट इज़ पोलर ड्रेनेज। जैसे अगर आप मैप पे भी देखो तो यहाँ पे नॉर्थ सी वाली साइड पे यहाँ पे है पोलर ड्रेनेज। नेक्स्ट वी हैव ब्रिटिश आइल्स। इसमें हमारे पास आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इन तीनों को कहते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन, GB, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। व्हेन नॉर्दर्न टिप ऑफ आयरलैंड इज़ इंक्लूडेड, एरिया इज़ कॉल्ड UK, ठीक है। ऊपर वाले जो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारे पास रिसेंट टाइम में यूज़ होता था, अब भी होता है लेकिन कम होता है। तो ये इन 3 स्टेट्स को हम कलेक्टिवली अगर बोलें तो दैट इज़ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। जो नॉर्दर्न टिप है आयरलैंड की, अगर उसको भी हम इंक्लूड करते हैं तो फिर हम उसको UK कहते हैं, ठीक। ये उसका पॉलिटिकल मैप है। देन वी हैव रशियन फेडरेशन इन यूरोप, जो मैंने आपको पहले बताया ना, जहाँ से यूरल माउंटेन्स जो हैं, यूरल माउंटेन रेंजेस वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। तो उसका जो रशिया का कुछ थोड़ा सा पार्ट है वाइट सी से नीचे वाला, उसके वेस्टर्न साइड वाला, वो हमारे पास यूरोप में काउंट होता है, एंड दैट इज़ 30% ऑफ रशिया। Next we have our another continent, that is Africa, and that you know by the reference of black continent or black people, and it's a Muslim continent. अगर हम population wise देखें तो it is the second largest continent and second populous continent after Asia, क्योंकि हमारे पास जो population की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एशिया आता है और देन वी हैव अफ्रीका। तो इसमें हमारे पास आते हैं 54 कंट्रीज़, एंड जो साउथ सूडान है, इट इज़ द कॉन्टिनेंट्स न्यूवेस्ट कंट्री, क्योंकि आई थिंक इनका वो पॉलिटिकल या कुछ टेरिटोरियल इशू था, आर्मी के जो अंडर उनका था सारा, पिछले दिनों भी न्यूज़ चल रही थी, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ये जब सेपरेट हुआ था तो उसको साउथ सूडान का नाम दिया गया और इसको न्यू कंट्रीज़ के बोलते हैं। सूडान के जब 2 हिस्से हुए थे ना, तो उसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया गया था, तो सदर्न जो है उसको इसलिए यहाँ पे कहा हुआ है कि वो न्यू कंट्रीज़ में एडेड है। इसमें हमारे पास अफ्रीका को जिससे हम पहचानते हैं, एवरीबडी नोज़ दैट इज़ नाइल रिवर।
ठीक है। ये दुनिया का आई थिंक द लार्जेस्ट रिवर है, और एंड इट्स अ मैसिव सहारा डेजर्ट। ये भी बहुत बड़ा है और इसको हम वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट है उसमें हम काउंट करते हैं। अफ्रीका इसकी जो है राइट साइड पे इंडियन ओशन टच करता है, और उसकी वेस्टर्न साइड पे हमारे पास आता है अटलांटिक ओशन, जबकि उसकी जो साउथ साइड है वहाँ पे हमारे पास आता है मेडिटेरेनियन सी, और साउथ में आता है हमारे पास अंटार्कटिक ओशन। ठीक है। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी टू नॉर्थ, बोथ स्विस कैनाल एंड द रेड सी अलोंग द सिनाई पेनिनसुला टू द नियरेस्ट ईस्ट, एंड इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट, एंड अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। ठीक है। आप इसको मैप पे देखेंगे तो आपको अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इंडिकेट हो रही है। हियर इज फिज़िकल मैप ऑफ अफ्रीका। आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं यहाँ पे। नाइल रिवर, उसके बाद हमारे पास न्यूबियन डेजर्ट है, देन वी हैव कॉन्गो रिवर, गल्फ ऑफ गिनी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें लेक विक्टोरिया, दैट्स इम्पॉर्टेंट, और उसमें है ग्रेट रिफ्ट वैली, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। और इसकी तो मेरे ख्याल में इन कमिंग ईयर्स इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अफ्रीका जो है इसका जो ईस्टर्न पार्ट है इट विल बी कट डाउन, और इसका जो ईस्टर्न पार्ट अलहदा हो गया, क्योंकि रिफ्ट वैली वहाँ पे इतनी ज़्यादा गहरी दरार पड़ चुकी है कि अफ्रीका जो है वो सेंटर से टूट जाएगा। और जो ईस्टर्न इसका पार्ट है सोमालिया वाली साइड जो है वो हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगी एशिया में। ठीक है। इंडिया के साथ जो है वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये इसको एशिया का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। देन वी हैव स्विस कैनाल, जो कि हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला और सिनाई पेनिनसुला के दरमियान में आती है, एंड इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल अफ्रीका। इसमें हमारे पास सारे पॉलिटिकल मैप में आपको पता है इसमें कंट्रीज़ मेंशन होते हैं, और ये सब वही है, आप देख सकते हैं। देन वी हैव अमेरिका न्यू वर्ल्ड और डिस्कवर्ड वर्ल्ड। इसकी यहाँ पे जो हिस्ट्री लिखी हुई है 2-3 पॉइंट्स ये यूएस हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। इसमें ये बताया हुआ कि अमेरिका जो है न्यू वर्ल्ड वो डिस्कवर जब हुआ था तो उसकी जो लैंड्स थे उसके अपने नहीं थे, उसके पास जो उसने अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट है, उसने वो रशिया से ख़रीदी थी 20 मिलियंस में इन 1867, और कुछ और भी उसके पार्ट्स है जो उसने कुछ फ्रांस से ख़रीदे, कुछ जर्मनी से ख़रीदे, कुछ बाकी कंट्री से। तो इसकी वजह से अमेरिका जो है वो इतनी बड़ी टेरिटोरियल लैंड बन गया, कंट्री बन गया, जो और इट इमर्ज्ड ऑन द वर्ल्ड एज अ पावर। अमेरिका में हमारे पास अगर हम देखें इसका मैप तो हमारे पास 2 इसके हिस्से हैं, एक नॉर्थ अमेरिका है और दूसरा है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है, अब अगर इसको हम उसके साइज़ की बेस पे देखें, टेरिटोरियल वाइज देखें, इट इज़ द प्लैनेट्स 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इंक्लूड्स 23 countries and dozens of other possessions and territories. It contains all Caribbean and Central America countries, Canada, Mexico, United States of America, as well as Greenland and the world's largest island. ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, राइट। ये मैप है, आप उसको देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का। देन वी हैव सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में आता है, जो हमारे पास पनामा वाला पार्ट है। ठीक। दैन कैरेबियन सी, ये भी पनामा के राइट साइड पे आते हैं, क्यूबा के आसपास। दैन बरमूदा ट्रायंगल है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन में आती है, जिसकी जो अमेरिका से टच करता है, और कैरेबियन सी के ऊपर। अच्छा, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी रूमर्स हैं कि यहाँ पे
जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में एंड वेरी मिस्टीरियस सिचुएशंस जो लोग आई थिंक बस बात कर सकते हैं लेकिन दे कांट प्रूव। तो कुछ उसको कहते हैं कि एलियंस जो हैं वहाँ पे वो रहते हैं या उसके ऊपर वो रहते हैं या फिर उसके ये मॉन्स्टर्स हैं वहाँ पे या उसकी शेप इस तरह से हो सकती है। मतलब बहुत सारी इसके बारे में र्यूमर्स हैं बट nobody knows what the reality is. Next we have South America. It is the fourth largest continent and includes 12 independent countries and 3 major territories. ठीक है, बाकी हमारे पास इसमें हमारे पास एंजल फॉल्स आता है वेनेजुला में, और जो है द लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर, ये हमारे पास साउथ अमेरिका में आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है अमेज़न रिवर। एक हमारे पास आती है अमेज़न वैली, दैट इज़ इन यूरोप, एंड अमेज़न रिवर इट इज़ इन साउथ अमेरिका। इसमें हमारे पास अटैकमा डेजर्ट है जो कि चिली में आता है, ब्राज़ील के वेस्टर्न साइड पे। कि अमेज़न रिवर की ख़ास बात ये है कि इट इंक्लूड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट द हाईएस्ट कैपिटल सिटी। इसका नाम है बोलिविया एंड हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड दैट इज़ लेक टिटिकाका। प्रोनाउंसिएशन आप इसका चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव अंटार्कटिका, that is totally ice. It is 98% solid ice and finally it is considered a continent in 1840 मीन्स उससे पहले इसकी एग्जिस्टेंस का लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसका कैपिटल सिटी कोई है नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है। वहाँ पे टोटली हमारे पास आइस है, 98% वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और वहाँ पे कोई जो है ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। Climate Antarctica is the coldest and windiest spot on the planet, and in fact the lowest temperature ever recorded on the earth was recorded in Antarctica. मीन्स इस कॉन्टिनेंट पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और अभी रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई है कि अंटार्कटिका जो है इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसकी आइस जो है दैट इज़ मेल्टिंग अवे एंड मे बी वहाँ पे लोग जो हैं वो वहाँ रहना शुरू कर दें। अभी इस तरह की कुछ न्यूज़ चल रही है लेकिन इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ एवरीथिंग विल गेट क्लियर। और कुछ लोग अंटार्कटिका के बारे में ये भी कहते हैं कि वहाँ पे ऑयल के जो हैं रिजर्व्स हैं एनर्जी के वहाँ पे हैं और चाइना उस पर काम भी कर रहा है। चाइना और रशिया दोनों वहाँ पे काम भी कर रहे हैं इस के हवाले से। देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप सेपरेटली देखें, यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखें लेफ़्ट साइड पे, तो इसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलेंगे। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पापुआ, यहाँ पे मैप पे ऊपर कटा हुआ है, ये ऊपर आप मैप पे देखिएगा वहाँ पे पापुआ न्यू गिनी लिखा होगा, वो ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ठीक है, वो दरम्यान से कटा हुआ है, उसके दो हिस्से हुए हैं, एक इसके साथ है और दूसरा इंडोनेशिया का पार्ट कंसिडर किया जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया उसके नियर बाय छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, और उसको पापुआ न्यू गिनी उसके साथ हम कलेक्टिवली अगर इसको बोलें तो दैट इज़ कॉल्ड ओशनिया। इसमें हमारे पास 5 उसकी रियासतें हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वीनलैंड एंड न्यू साउथ वेल्स। 6 है आई थिंक सो विक्टोरिया। इसका मैप मैं आपको डोंट वरी, मैं आपको हर कॉन्टिनेंट का सेपरेटली मैप जो है फिज़िकली और पॉलिटिकली मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी विद मैप, सो डोंट वरी अबाउट इट। Next we have world's largest countries, that is Russia, Canada, USA and China, and world's smallest countries, Vatican City, Monaco and Nauru. These are the smallest countries. These are in Europe and these are island countries. Okay. जो हमारे पास largest countries हैं वही हमारे पास populous भी हैं, जो smallest हैं वो least populous हैं। Then these are continents by size and by population. आप इसको वीडियो को पॉज करके you can check it out and note down if you are interested to memorize these figures. Then we have top tallest mountains and
The above 10 tallest mountains are generally, and the bottom at the bottom are by continent. ये हमारे पास दुनिया का पूरा मैप है जहाँ पे उसको उसके फ्लैग्स के जो सिंबल्स हैं उससे मेंशन किया हुआ है. And it was all about the lecture of today. That was the very introductory lecture of geography that everybody must need to know about it. And thanks for bearing this presentation. I hope lecture ने आपको बोर नहीं किया होगा. It was the first ever recording lecture of mine, because I have never done this before. तो उसमें जो भी कुछ स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ वर्ड्स और कुछ इस तरह की जो माइनर छोटी मिस्टेक्स होंगी, मे बी मेरे लिए माइनर है, मे बी आपके लिए बड़ी हो सकती हैं. आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. दैट would be informative for you all and helpful for you. And I want you people to support me and like and subscribe this channel and this video, and press the bell icon so that आपको जो upcoming videos हैं lecture series of geography आप उससे update होते रहें. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care. Have a nice day.